Hello student of class 11 science. Now the mechanical properties of the fluid. In this mechanical properties of the fluid, the part 1 or part A, first topic which we have to understand is the pressure due to a fluid column. Right? So what is the meaning of the pressure in fluid? Pressure in fluid is defined as the magnitude of the normal force acting on a unit surface area of the fluid. Right? Pressure in fluid is defined as the magnitude of the normal force. Normal means perpendicular. Normal force acting on a unit surface area of the fluid. That is, pressure is equal to force by area. And more or less this pressure is, however, the scalar quantity. Why? Because it has a different value in the different directions. So that's why, as the direction is not definite, so we have to term it as the scalar quantity. Now, how to find the expression and what is the meaning of that pressure due to a fluid column? I have taken the beaker in which water is there. I have taken fluid. In fluid means the things which can flow. Here we have taken the water. Right, water column. So what is the pressure exerted by the water column or the fluid column? That we have to find out the expression. So first of all, we have to find, just you imagine one imaginary area of the cross section A, imaginary area inside it, cross section A and the depth D. So imagine this is a small beaker. I have taken this particular, I am taking it inside it. So imagine this is a particular area on which we are going to find out the pressure. How much pressure is exerted on this imaginary surface of the small cylindrical body. So this is the particular area. I have taken this is your area of cross section, and this is the h height. So how to find the pressure exerted by the fluid column on this small cylindrical body? So first of all, we have to find out the force, normal force, and then the area. Just to divide the area, you will get it. So what should be the normal force on this area? इस पर normal force कितना होगा? Normal force by this column. So the pressure due to a fluid column, pressure normal force by area of cross section, right? So first of all, we have to find the normal force. Normal force हमको निकालना है, and force is equal to क्या होता है? M into G. So mass of the liquid column of depth h into G. अब हमको तो मालूम नहीं है, we don't know what is the mass. So ultimately, how to find the mass? Volume into density. Of fluid of depth क्या है? h into G. Right? Now volume, say the V, density rho into G. Right? So is equal to, in place of volume, we have to write just to see, A into H is the volume. A into H. हमको निकालना क्या, इतना पर कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है. So volume V is equal to A into H into rho into G.
कहाँ से आया, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू हाइट. सो अल्टीमेटली दैट इज एफ इज इक्वल टू क्या आया, ए एच रो जी. सो देयरफॉर pressure due to the fluid column is equal to A H rho G by A, that is your H rho G. This is the pressure H rho G. So is it clear? फिर से एक बात देखिए, ये फ्लूइड है या लिक्विड है, वाटर हम लिए हैं यहाँ पर. एक इमेजिनरी सरफेस हम कंसिडर किए हैं यहाँ पर, 3 डायमेंशनल मीन सिलिंड्रिकल सरफेस, और ये जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, हाइट या डेप्थ जो बोलिए, हाइट इसका एच है. तो नॉर्मल फोर्स निकालेंगे और उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हम लोग एज्यूम किए हैं, दोनों को डिवाइड करें. फोर्स हम लोग कैसे निकालें, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एम इंटू जी, एम मास इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मास तो हमको मालूम नहीं है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ऑफ डेप्थ डी, डेप्थ एच. इसके अंदर ये तो हम ये पूरा कंप्लीट वाटर का सरफेस है, तो इसका पूरा डेंसिटी होना चाहिए. इसका डेंसिटी क्योंकि हमको मास निकाला, और ये इमेजिनरी सरफेस है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड वॉल्यूम हो गया वी रो इंटू जी. तो ए एच रो जी, ये आ गया फोर्स और प्रेशर, जस्ट ए से डिवाइड करें, एच रो जी, राइट. नाउ इट्स एप्लीकेशन नाउ सी द application of this very very important formula. एप्लीकेशन, अब इसका एप्लीकेशन हम लोग कहाँ करते हैं, देखिए. एग्जाम्पल अगर हमको मान लेते हैं, हाइट ऑफ द एटमोस्फियर का हाइट निकालना है. वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द एटमोस्फियर. और गिवन हाइट ऑफ द एटमोस्फियर, गिवन क्या है, गिवन यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ एयर, मान लेते हैं 1.29 इंटू 1.29 kg पर मीटर क्यूब, इतना होता है. दैट इज एटमोस्फेरिक और यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ एयर, ये गिवन है. एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है एट एनटीपी, कितना होता है इसका वैल्यू, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना. अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एटमॉस्फेयर जो है, एटमॉस्फेयर उसका हाइट. अब हम लोग वही फॉर्मूला का यूज करेंगे कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी. प्रेशर कितना, 1.013 इंटू 10⁵. हमको हाइट निकालना है, एच बाई रो इंटू जी. इसको डिवाइड कर देंगे, रो का वैल्यू दिया हुआ है और जी 10 ले लिए. तो हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज अप्रोक्सीमेटली, इफ यू आर कैलकुलेटिंग, 7.95 इंटू 10⁸ मीटर. दैट इज अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर. ये हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर होता है. एटमॉस्फेयर का हाइट कितना है, 8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली. लेकिन इफ द डेंसिटी ऑफ द एयर विच वी हैव टेकन 1.29 kg पर मीटर क्यूब, और ये दोनों में हालांकि ये यूनिफॉर्म नहीं होता है. इफ यू गो अहेड और इफ यू आर गोइंग अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, इट इज गोइंग टू वैरी. अगर हम लोग ये लेके चलते हैं तो हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर 8 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली. Now comes to the Pascal's law. Pascal's law
A very, very important law, and having the practical application. What is the statement of this law given by the Pascal scientist? The pressure applied to an enclosed liquid or fluid is transmitted undiminished in every portion of the liquid and to the walls of the containing vessel. I am repeating, the pressure applied to an enclosed liquid or fluid is transmitted undiminished in every portion of the liquid and to the walls of the containing vessel. Now just to see, this is the enclosed part. Here the fluid or the liquid I have taken here, and having the 4 openings, 1, 2, 3, 4. Say if the force is applied here and having this piston system is there, here the piston area of cross section is A, then what happens? The pressure is transmitted, this P, say the amount of pressure which is exerting here is your P, that this particular pressure P is transmitted to all the opening of the piston and to all the parts of the enclosed container. This is the enclosed container. P will reach here, P will reach here, P transmitted, means this pressure is transmitted undiminished to all the parts. This is the Pascal's law. Now it's the application. First application is your hydraulic lift. Very important. Hydraulic lift. This is just to see the diagram. Here two varying cross section area is there, small a and capital A. I have taken here small a, capital A area of cross section of the piston is greater than the small a. This, and here fluid is intact, and here the load which we have to lift it, जिसको हमको लिफ्ट करना है वो हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं. नाउ मान लेते हैं अगर F फोर्स अप्लाई हो रहा है, F force is applying and area of cross section is A, then the pressure is, say the pressure is P. This pressure is transmitted to all the parts. The same pressure is transmitted here. Now यहाँ पर pressure क्या होगा? वही P according to Pascal's law. Then the pressure is equal to at A, at say this section A, this section B. Pressure at A, यहाँ पर प्रेशर कितना पड़ा? फोर्स बाय एरिया. यही वाला प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है, और ये प्रेशर और पी बी में कितना होगा प्रेशर? वही सेम F बाई ए, सेम प्रेशर ट्रांसमिट होगा यहाँ पर. तो यहाँ पर हम लोग, और यही वाला प्रेशर यहाँ पर, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और फोर्स हम लोग लेके चल रहे हैं कैपिटल एफ, तो यहाँ पर भी कैपिटल एफ बाई ए लिख सकते हैं, कैपिटल ए. सो स्मॉल एफ बाई ए, स्मॉल ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ बाई ए. नाउ एज दिस as A is greater than small a, so we have to say F is greater than small a, F. So यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लग रहा है, इसीलिए ये लिफ्ट हो जा रहा है. इट लिफ्ट, ये ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाएगा. कम फोर्स, कम प्रेशर या कम फोर्स हम यहाँ पर अप्लाई किए, ज़्यादा फोर्स हमको यहाँ मिला. यही तो मशीन है. दैट इज द हाइड्रोलिक लिफ्ट, राइट. देन कम्स टू द नेक्स्ट एप्लीकेशन is your hydraulic brake. Hydraulic brake, just to see here, hydraulic brake, same application is on the Pascal's law is the basic of this. Just see the diagram. Here the paddle is there. What is this? Paddle. यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं प्रेशर या फोर्स. यहाँ ये लीवर सिस्टम से ये ऐसे कनेक्टेड है, एंड दिस इज व्हाट, इसको क्या बोलेंगे? यहाँ एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, यहाँ पर ओपनिंग है, यहाँ पर ब्रेक ऑयल सब भरा हुआ है. ये सब लिक्विड क्या है?
हम लोग व्हीकल में यूज़ करते हैं ब्रेक ऑयल, और यहाँ पर यहाँ पर भी एक सिलेंडर है, ये ब्रेक ऑयल यहाँ पर आया, यहाँ पर P1 P2 क्या है, पिस्टन है, P1 P2, और यहाँ पर S1 S2 क्या है, ब्रेक शू S1 S2, एंड ब्रेक शू का कनेक्शन टायर से या व्हील से होता है। ये एक व्हील का फर्स्ट ओनली वन व्हील, एंड सिमिलरली टू अदर 4 व्हील्स वी हैव टू कनेक्ट इन दिस वे। तो इसमें क्या हुआ, प्रेशर यहाँ पर जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ, मान लेते हैं P प्रेशर एग्जर्ट हुआ, वही सेम प्रेशर यहाँ पर भी आया, और ये प्रेशर इधर प्रेस किया, यहाँ पर प्रेशर ट्रांसमिट हुआ अनडिमिनिश्ड, इसको ये ब्रेक पिस्टन जो है ब्रेक शू को प्रेस किया और इधर भी प्रेस किया, तो टायर रुक गया, मीन्स इट स्टॉप्स, राइट। सिमिलरली for the other wheel also we have to connect it in this way. Okay, these two very important applications of the Pascal's law. Number one, hydraulic lift, which is a machine which will have to lift the load, and the second one is your hydraulic brake, which is used in automobile brake oil fluid का काम कर रहे हैं, यहाँ पर प्रेशर ट्रांसमिट हुआ, ब्रेक शू, और इस तरह से व्हील स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, ब्रेक लग जाता है व्हीकल में। दीज टू वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। नाउ सम एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऑफ दिस पार्ट। Archimedes principle, which you had already gone through in class 9. Archimedes principle, when a body is immersed fully or partially in a fluid, then it loses its weight, which is equal to the weight of the fluid displaced. I am not going in detail about that, but you have to remember fluid displaced, Archimedes principle, very important principle. Some extra point also you have to remember, like number 1 is your Archimedes principle. कुछ और extra point है जो जानना जरूरी है for the higher classes. The point through which upthrust acts on the body. upthrust क्या है मालूम है सबको, क्लास 9 में पढ़े हो। acts on the body when it is immersed is called सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी, इसको कभी कभी CB से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ बायंसी। सेंटर ऑफ बायंसी क्या हो, पॉइंट थ्रू विच अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन द बॉडी व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ बायंसी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मालूम है, तो सेंटर ऑफ बायंसी जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है और उस ऑब्जेक्ट को एक फ्लूइड में इमर्स किए, तो ये एक सेंटर ऑफ बायंसी एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिसके अक्रॉस क्या होगा, जो अपथ्रस्ट है वो लगता है। अपथ्रस्ट ऊपर की ओर लगता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, ये हमेशा ऊपर की ओर, तो ये सेंटर ऑफ बायंसी होता है। अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और अपथ्रस्ट दोनों सेम होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी दोनों सेम रहता है। अब एक कंडीशन आता है, मान लेते हैं एक कंडीशन ऐसे आता है, तो यहां पर क्या है, अगर मान लेते हैं हम लोग यहां पर एक डायग्राम बना रहे हैं, एक यहां पर हम फ्लूइड लिए और यहां पर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म होमोजेनियस बॉल है मान लेते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी, ओ जो पॉइंट होगा, ओ पॉइंट मीन्स सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही लाइन में है, अगर है देन इट इज स्टेबल। मीन्स अगर सेंटर ऑफ बायंसी
एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर एक ही है तो भी वो एक ही पॉइंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट विल रिमेन स्टेबल। अगर दोनों सेंटर ऑफ बायंसी या सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही लाइन में है तब भी वो ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा, स्टेबल। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लेते हैं यहां पर नॉन यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट हम लिए हैं, नॉन होमोजीनियस, एक इस तरह का ऑब्जेक्ट लिए हैं, तब यहां पर एक समस्या है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ बायंसी दोनों अलग अलग। सेंटर ऑफ बायंसी मान लेते हैं यहां पर हो गया नॉन यूनिफॉर्म या नॉन होमोजीनियस ऑब्जेक्ट है, नॉट होमोजीनियस, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर लगा और सेंटर ऑफ बायंसी में आप थ्रस्ट ये ऊपर की ओर, तो एक फोर्स यहां एक फोर्स यहां, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये पॉइंट है और यहां पर एक फोर्स लग रहा है F या W, कुछ भी इसका वेट। अगर ऐसा कंडीशन है, सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बीच कुछ एक ही लाइन में नहीं है, इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ बायंसी आर नॉट इन द सेम लाइन, नॉट इन द सेम लाइन, कौन कौन सा, सेंटर ऑफ बायंसी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तब क्या होगा, यहां पर एक टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा, यहां टॉर्क, और इस ऑब्जेक्ट को घुमाना शुरू करेगा, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, so torque, so it will be unstable, ये unstable हो जाएगा। ओके, so these are the points which you have to remember, ये दोनों पॉइंट, एक्स्ट्रा पॉइंट जो जानना जरूरी है। ओके, थैंक यू।